Hello everyone, welcome back to my channel. Today's video is super special. I have a super special guest on my channel, my closest friend from my undergrad studies, Priyanka, and she's gonna join us soon. But before that, I just want to give you a bit of intro for this video. जैसे कि आप जानते हैं, I have two videos on my channel where I have discussed abroad options after doing homeopathy in your undergrad studies, and I still get a lot of questions. The whole point of making such videos was to compile all the questions I get and put it out there, but I still get a lot of questions. And my friend, after she did homeopathy with me, she's in Canada right now. She's working in Canada now. So I asked her if she would be okay to come join us and answer some of your questions, because उसको भी बहुत सारे questions आते रहते हैं from our juniors. We were like, why not make another video जिसमें she can come and answer some of your questions. So, और वैसे भी quarantine का time है, we are all in our homes, and I thought why not make something productive out of it. And yes, so she's gonna join us. And in case you don't know which two videos I'm talking about, I'm gonna link it somewhere here. Please check them out. They are part 1 and part 2 videos of all the questions you asked me. And this is going to be the third part, part 3. And let's get started with the video and let's just welcome her. For the very first time, I have a special guest on my channel, my closest and dearest friend from my undergrad studies. We did our undergrad together. And let's welcome Priyanka. Hi Priyanka. Hi. Or Priyanka, how are you? Good, how are you? I'm good as well. She was very kind enough to join us and answer some of your questions, which we still get. Even Priyanka was telling me उसको भी अभी तक बहुत सारे questions आते हैं. Am I right, Priyanka? Yes. So we have our questions here. मैंने सारे questions लिख लिए, which I'm gonna ask her. And are you ready, Priyanka? Yes, I'm ready. So the first question I have for her. So what course did you do after your homeopathy? Bachelor's के बाद क्या किया आपने? Okay, so bachelor's के बाद मैंने कनाडा में आके autism and behavior science किया है, जिसके बाद मैं अब as a behavior therapist काम कर रही हूँ, and it is a part of behavior science, not related, like could be we can say that it is a part of mental health, but it is it's a branch of mental health, which is a behavior science. Okay, that sounds interesting. So why did you choose Canada? So my husband's, like everyone, you guys know that I am married. So although many लगती हूँ कि मैं married हूँ, but हाँ, तो like my husband has a family here. So me and my husband decided to join them. So we are like, we have a family here, so we don't feel isolated. So that is why we just choose Canada. So did you give any exams before coming to Canada? Yes, मैंने 2 exams दिए थे. First GRE, which is not required for my course specifically, but I just gave because I was planning to apply for masters, but somehow some things couldn't happen. Like कुछ चीजें मेरी favor में नहीं रही, और somehow I didn't get, chance to get into masters. So इसने फिर कोई और post graduate certificates में apply किया था, और luckily मुझे इस certificate में admission मिल गया, और इसलिए मैंने ये वाला सर्टिफिकेट किया विदाउट GRE. GRE इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर माई सर्टिफिकेट कोर्स. और सेकेंड एग्जाम में जो दिया था विच इज़ IELTS, विच इज़ आपको हमेशा देना ही होता है. इफ यू आर अप्लाइंग आउटसाइड इंडिया, तो आपको IELTS को देना ही है. Okay, so but I remember तूने GRE दिया था. So she prepared and gave her GRE as well. I gave my GRE. So how was your experience with GRE? It is tough. It is actually tough for me, honestly, because maths is not easy, and मेरे को लगा कि it is difficult for me, and I'm not really a maths person, so it is difficult. But हाँ, जिनको इंटरेस्ट है मैथ्स वगैरह करने में, उनके लिए मैं बहुत ईजी बोलूँगी. और प्रैक्टिस की होती ज़्यादा तो हो सकता है मेरे को मतलब मज़ा आता, बट मुझे मज़ा ही नहीं आया, इसलिए आई डोंट नो, बट ठीक है, हो गया. No, that's good. Okay, so एक question जो हमें बहुत बार पूछा जाता है, when I had to come to UK, I was asked it so many times, and I'm sure उससे भी बहुत बार पूछा गया था. And that question was, what was the eligibility criteria for applying? How did you apply? So first of all, the criteria for applying,
मेरे कोर्स में स्पेसिफिकली था कि दैट इज लाइक आई ऑलरेडी मेंशन दैट इज अ पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, सो एटलीस्ट यू शुड हैव अ बैचलर्स डिग्री बिफोर। इसलिए मैं बोलूँगी लाइक हम लोग जब इंडिया से बाहर अप्लाई करते हैं तो इंडिया के बाहर एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि इफ़ यू हैव अ डिफरेंट बैकग्राउंड, यहाँ पर बेटर होता है कि आप अपना इंटरेस्ट उनको शो करोगे, वो आपको फिर भी ले लेते हैं। जस्ट माई फील्ड ऑल दो हम लोग फिर भी कनेक्ट करते हैं बिकॉज हमारी फील्ड इज पार्ट ऑफ अ हेल्थ रिलेटेड फील्ड। हम लोग क्लिनिशियंस हैं, हम लोग लाइक हम बोल सकते हैं कि ठीक है हमारी फील्ड रिलेटेड है, बट इन केस अगर कोई और भी अप्लाई करना चाहता है और अपना वो लेटर ऑफ इंटरेस्ट में ये शो करता है कि हाँ मेरे को ये करना है बिकॉज मेरा पैशन हो गया है वट एवर, लाइक आप अपना इंटरेस्ट शो करो तो इट विल बी ईजी कि आप उसमें आ सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, दूसरा आपके पास IELTS एग्जाम होना चाहिए बिकॉज हमारी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं होती है जो सब जानते हैं, तो इसलिए आपको IELTS एग्जाम ज़रूर देना है। एंड बाकी थर्ड इज़ लाइक आप अपना इंटरेस्ट शो करो, लेटर ऑफ इंटरेस्ट जो हम बनाते हैं, जो मेरे हिसाब से मेरे लिए भी नया था और श्रेष्ठा ने मुझे बहुत हेल्प करी इस चीज़ में, तो थैंक्स टू यू। वेलकम। फ्रेंड्स किस लिए होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, फ्रेंड्स इसलिए ही होते हैं और मैंने श्रेष्ठा का बहुत दिमाग दिखाया है इस चीज़ में। तो बेसिकली ये 3 इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है और आई डोंट रिमेंबर अबाउट द CGPA बट दिल आस्क फॉर CGPA, बट मेरे को लगता है वो भी बहुत ज़्यादा मसला नहीं है बिकॉज यार हम लोग ऑलरेडी क्लिनिशियन बैकग्राउंड से आते हैं, तो आई बिलीव हम लोग के लिए फिर भी लाइक ईजी है कि हम लोग अगर इन डिप्लोमाज और लाइक ग्रेजुएट सर्टिफिकेट्स के लिए अगर हम अप्लाई करें। So for me, I can say that it's not very difficult to apply for those things, but I can say that masters will be challenging for you guys, but certificates and diploma will not be that much challenging for you. Okay, that was really helpful. I hope you guys are taking notes because there's a lot she's telling us. So the next question I have is, how was your student life in Canada? मतलब कैसा डिफरेंट था इंडिया से और कितना मजा आया, कितना अजीब था? आई मीन लाइक टेल अस योर एक्सपीरियंस। यार मैं बताऊं ऑनेस्टली तो बहुत डिफरेंट था। मतलब जैसे कि हम लोग कॉलेज में साथ पढ़ते हैं और हमें पता है कि हम लोगों के यहाँ तो लाइक गुरु भगवान के समान होता है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर तो मुझे बहुत शौक लगा जब मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा कि वो प्रोफेसर के बाद पास गए हैं और वो लोगों ने सीधा नाम लिया है। लाइक वन ऑफ माई प्रोफेसर नेम इज लाइक लॉरा, सॉरी आई एम नॉट मतलब अगर मैं उसका नाम ले रही हूँ तो, बट ठीक है मुझे पता है वो नहीं देखने वाली है हमारा चैनल, बट स्टिल तो मैं उसके पास वो गए और उसने बोला लॉरा एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड व्हाट इज दिस। मतलब यहाँ पर आप प्रोफेसर के नाम लेते हो और हम लोग यहाँ तो मैम और सर, इवन हम लोग तो सीनियर्स को भी मैम और सर बोलते हैं। यहाँ तो इवन अगर आप प्रोफेसर्स को ले रहे हो तो लाइक नो सीनियर्स नो जूनियर्स, फिर ऐसा नहीं होता है, एवरीबडी इज लाइक सेम। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा लाइक सरप्राइज था, और सरप्राइज नहीं बोलूँगी तो शॉक था बेसिकली। उसके बाद एवरीथिंग इज लाइक क्वाइट सिंपल यहाँ पर, और मैं ऑनेस्टली बोलूँगी यहाँ पे जो प्रोफेसर और एक स्टूडेंट का जो आपका रिलेशन होता है आपस में वो बहुत अच्छा होता है। लाइक दे आर लाइक प्रीटी हेल्पफुल एंड बहुत ज़्यादा काइंड होते हैं आपके साथ में। आप किसी भी चीज़ के लिए जाओ, छोटी से छोटी चीज़ के लिए जाओ, बहुत आपको हेल्प करेंगे। थर्ड, मेरे को लगता है कि मेरे कोर्स में स्पेसिफिकली लाइक आई एम ब्लेस्ड विद ग्रेट प्रोफेसर्स इन माय दिस सर्टिफिकेट कोर्स बिकॉज मेरी प्रोफेसर्स ने हम लोगों की लाइफ जो थी बहुत फन बना दी थी। लाइक टीचिंग इज अ फन हियर बेसिकली। लाइक उनके, मैं ये नहीं बोलूँगी कि सब जगह पे ऐसा होता है, बट लाइक स्पेसिफिकली टू माई प्रोग्राम और लाइक विच प्रोफेसर आई हैड, आई एम नॉट श्योर लाइक मेरे पुराने लोगों को इतना एक्सपीरियंस हुआ था नहीं, तो उन लोगों ने बहुत फन से हमें पढ़ाया है। वो लोग हमारे साथ में लाइक ऑनलाइन गेम्स के साथ में हमें पढ़ाते थे, हम लोगों के साथ क्विज करते थे, तो इट वाज वेरी वेरी फन रिलेटेड। और यहाँ पर यार लेक्चर्स ये होते हैं कि ठीक है भैया एक सुबह मॉर्निंग में लेक्चर है, फिर बीच में 2 घंटे का गैप है एंड देन लेक्चर है। तो मतलब अगर आपके पास सोशल लाइफ है, अगर आपके पास फ्रेंड्स है तो आप इजीली चल सकते हो, बट अगर आप नए नए आए हो समटाइम आप बहुत स्ट्रगल करते हो कि यार अब हम क्या करें, लाइक हमारा लेक्चर नहीं है तो अब हम क्या करें, बिकॉज एवरीबडी इज लाइक मेकिंग, मतलब सब लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। मतलब कुछ चीज़ें थी जो मुझे अच्छी लगी, कुछ चीज़ें थी जो मुझे बहुत सरप्राइजिंग थी। ओवरऑल मैं बोलूँगी कि मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ उतनी इंजॉय नहीं करी है जो मैंने इंडिया में इंजॉय की थी बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड्स स्पेसिफिकली। बट हाँ, मैंने यहाँ पे कुछ अच्छे फ्रेंड्स बनाए हैं, बट सेम मतलब मैं अपनी पुरानी कॉलेज लाइफ को ज़्यादा मिस करती हूँ यहाँ पे एज कम्पेयर टू अपनी ये वाली लाइफ। Okay. Yeah, she's right. Like even I was shocked when I heard these things and professors के first name से बुलाते हैं. It was different, very different experience. I'll not say it was like अजीब. It was okay. मतलब उसमें adjust करना आसान था at one point. But yes, it was a very different experience.
which I guess we enjoyed, you know, going through that experience as well. मतलब होना चाहिए ऐसा experience. मतलब इट्स गुड कि आप ऐसा एक्सपीरियंस करो लाइफ में, बिकॉज वही बात हो जाती है लाइफ में, हमें सब कुछ देखना चाहिए. तो मतलब अच्छा था, बट एट द सेम टाइम ऐसा लगा कि यार ठीक है, आफ्टर सो मेनी ईयर्स आप इंडिया में वो कराते हो. ऑनेस्टली बताऊँ, हो सकता है इंडिया में भी होता हो, बट हम लोग हमारे कॉलेज में जैसा सब जानते हैं, हमारे कॉलेज में तो हम लोग के कॉलेज में हम कैसा एक्सपीरियंस करते हैं ये तो हमारे जूनियर्स और हमारे सीनियर्स बहुत अच्छे से जानते हैं. तो मतलब उसके बाद हम एंटायरली ऐसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा लेकिन एडवांस है कि हर बंदा इतना ज़्यादा टेक प्रो है आता है. तो मैं बोलूँगी कि जो लोग ऑलरेडी इंडिया में हैं, दे आर प्लानिंग टू कम टू लाइक कैनेडा और लाइक एनी अदर कंट्री, अपने आप को थोड़ा टेक प्रो बना के आना, क्योंकि यहाँ पर आके आपको बहुत ज़्यादा लगने वाला है कि यार हमें कुछ नहीं आता. Yes, that was a real nice answer. Okay, so the next question I have is, so did you get a job after completing the certificate of yours? Yes, I just said that I was blessed because थोड़ा like long story को मैं थोड़ा short में बताना चाहूँगी यहाँ पर कि You are a bright student, so it's not that you were just blessed. Yes, she is one of the brightest students and she's very intellectual as well. So she was not completely all blessed. सब कुछ qualities होनी चाहिए to get a job abroad, guys. It's not all you just ठीक है, luckiness होता है कि आप lucky हो. हाँ, agree. But मैं smartness भी बोलूँगी कि चाहिए. इंडिया, I'm not comparing, but यहाँ पर भी उतना ही difficult है. Like I don't know, like कुछ लोगों को लगता है कि इंडिया से बाहर जाके it will be easy because competition less है. Honestly नहीं है. ऑनेस्टली गाइज, लोगों का ये एक्चुअली मिथ है कि इंडिया के बाहर कंपटीशन नहीं है. मैं बोलती हूँ यहाँ ज़्यादा है. कल्चर बहुत डिफरेंट है, वर्किंग कल्चर इज़ लाइक वेरी डिफरेंट एंड इंटरव्यूज़ पे इंटरव्यूज़ होते हैं. ऑनेस्टली जो मेरे को मेरी पहली जॉब मिली आफ्टर 4 इंटरव्यूज़ मिली. सेकेंड जॉब में भी लाइक सेकेंड जॉब में मैंने 4 से 5 इंटरव्यू दी हैं. सो लाइक अगेन टू योर क्वेश्चन श्रेषा, आप जो तुझे मुझे पूछा कि ठीक है मेरे को जॉब मिली, मैं बोलूँगी हाँ मुझे जॉब मिली, बट इनिशियली आई गॉट अ पार्ट टाइम जॉब. दैट इज़ बिकॉज यहाँ पर बिकॉज मैंने ऑटिज्म एंड बिहेवियर साइंस किया है. तो इन कैनेडा व्हाट दे डू, यहाँ पर गवर्नमेंट से फंडिंग मिलती है फैमिलीज़ को टू गेट द बिहेवियरल सर्विसेज फॉर देयर ऑटिस्टिक चाइल्ड. सो जब मैंने कोर्स पास किया था, लाइक आई गॉट ग्रेजुएटेड इन अप्रैल एंड बिफोर दैट फरवरी में द फंडिंग सिस्टम हैज़ टोटली चेंज बिकॉज गवर्नमेंट ने फंडिंग इज़ लाइक बहुत कम कर दिया था. आई कैन से दैट इट्स ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल. सो बिकॉज ऑफ दैट बहुत सारी सर्विसेज बहुत सस्पेंड हो गई थी. क्लाइंट्स नहीं थे मार्केट में, जॉब्स नहीं थी मार्केट में बिकॉज फंडिंग कम हो गई थी, लोग नहीं भेज रहे थे, तो जॉब नहीं थी. तो दैट इज़ व्हाई आई सेड आई गॉट लकी बिकॉज ऑफ दैट सिचुएशन. एंड इनिशियली आई गॉट अ पार्ट टाइम जॉब जिसमें मैंने 2 महीने काम किया है. उसके बाद 2 से 3 महीने शायद मैंने काम किया है. उसके बाद मैंने, ऑल्दो मैं रुकी नहीं अप्लाई करने से फुल टाइम जॉब के लिए, but and after that I got a full-time job, so I'm still working as a full-time behavior therapist. That's wonderful. So the next question I have is, so what is the scope of psychology in Canada? Is it easy or difficult to get in the course? Psychology वैसे तो बहुत अच्छा करियर है यहाँ पर, बट उतना easy नहीं है. तो मैं अगर बोलूँ हमारे लिए भी नहीं है, बिकॉज यहाँ पर साइकोलॉजी में एंटर होना लाइक अगर आपके पास लाइक फॉर एग्जांपल अगर इंडिया से कोई बैचलर्स ऑफ साइकोलॉजी भी करके आ रहा है, मैं बोलूँगी उसके लिए भी इजी नहीं है. सो वी आर लाइक एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम देम बिकॉज यहाँ पर जितनी भी बैचलर्स होती हैं वो 4 साल की होती हैं एज एवरीवन नोज. तो इसलिए हम लोगों के यहाँ पे जो बैचलर्स होती है वो 3 साल की होती है. इवन अगर आपके पास 3 साल की बैचलर साइकोलॉजी में, देन यू हैव टू गो फॉर अनदर 1 year हियर टू गेट योर ग्रेजुएशन कंप्लीट. एंड आफ्टर दैट इफ यू हैव टू गो फॉर मास्टर्स, it's all too complicated. It's not easy here. So for me, initially I have a plan to go for masters like after this course, like even when I get my PR and everything is done, and when I'm a like resident of Canada, then I have a plans to apply for psychology. But for now, when I got to know that it is not easy for me, then I'm like, okay, I will stay to my behavior science. It is, the scope wise it is very good, but to get into masters after BHMS, it's not easy. I can say, like, you know, I am not saying it's impossible, but it is not easy for us. Yeah, I get it. So what was she saying, उससे मुझे ये भी पॉइंट याद आया. इसलिए बहुत लोग जो इंडिया से बैचलर्स करते हैं 3 साल के, उसके बाद वो यूके में यहाँ की, क्योंकि मास्टर सिर्फ 1 year ड्यूरेशन की होती है. माई मास्टर वॉज फॉर 1 year ड्यूरेशन एंड इट वॉज अ मास्टर डिग्री. सो दे कम हियर, डू 1 year मास्टर्स, और फिर वो टोटल 4 साल हो जाता है. एंड देन दे मूव टू कैनेडा और समटाइम्स ऑस्ट्रेलिया एज वेल. बिकॉज आई रिमेंबर आई हैड अ फ्रेंड इन माई ग्रुप
उसने भी 3 साल का बैचलर्स किया हुआ था साइकोलॉजी में फ्रॉम इंडिया. शी केम हियर यूके में 1 ईयर उसने मास्टर्स की बिकॉज शी वांटेड टू गो टू ऑस्ट्रेलिया. और ऑस्ट्रेलिया में भी 4 साल का साइकोलॉजी का आई थिंक बैचलर्स होता है. सो देयर इज समथिंग टू कीप इन माइंड इफ इन केस आप बैचलर्स ऑफ साइकोलॉजी करके आए हैं. या दैट मेक सेंस. या बिकॉज इवन मेरी फ्रेंड है वो बैचलर्स ऑफ साइकोलॉजी कर आई है यहाँ पर, एंड वो मास्टर साइकोलॉजी भी कर आई है. बट उसका बैचलर्स एंड मास्टर एक्यूमुलेटिव होके सीधा बैचलर्स रह जाएगा. अगर यहाँ पर उसको फिर से मास्टर्स करनी पड़ेगी टू प्रैक्टिस एज अ साइकोलॉजिस्ट. सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और बहुत लोग ये पूछते हैं, इनफैक्ट मेरी वीडियोस के भी कमेंट सेक्शन में लोग बार बार ये पूछते हैं, हमने होम्योपैथी कर ली है, हमने बैचलर्स खत्म कर लिया है, अब हम क्या करें? What should be our next course? So tell us something कि हम कैसे चूज कर सकते हैं कोर्स अपना नेक्स्ट. तुमने कैसे चूज किया कि मैं ये करना चाहती हूँ? Okay, so first of all, मैं अगर अपने बारे में बात करूँ तो for me it is not very easy to choose a course basically. So, but I know that my passion or my inclination towards mental health is there. So I wanted to do something related to mental health. That is why I chose autism and behavior science. But I also applied for a course named mental health and addiction in Canada as well. But I didn't get a admission in that because it is also too competitive here. Like mental health overall is very competitive in Canada. Right. So it is not easy to get your admission in Canada in these kind of field. So, but somehow, but I got lucky that I get admission in autism and behavior science, which I already mentioned that it is a branch of mental health, but not a typical mental health. Okay, and then so that is why I applied. But for you guys, honestly, I can say, okay, but खुद को पूछो, what do you want, what are your interests, what do you really wanted to do. मैं बोलूँगी दोबारा से, देखो it is not very difficult. अगर आपको कोई और कोर्स में भी अप्लाई करना है, आपने लेटर ऑफ इंटरेस्ट नहीं शो करो, अपने इंटरेस्ट शो करो, करते हो सकता है आपके पैशन की वजह से आपको वो ले ले, अगर आपको एंटायरली डिफरेंट फील्ड जाना है तो. बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सोचना है कि आपको क्या करना है. फॉर एग्जाम्पल इवन श्रेष्ठा नोज के उसको भी मेंटल हेल्थ या साइकोलॉजी रिलेटेड जाना है, तब उसने साइकोलॉजी किया. एंड सिमिलरली मेरे को पता है कि मैंने ये करना है. इवन जो हमारे जो फ्रेंड्स हैं कॉलेज वाले, उनको पता है कि उन्होंने एमडी करना है, सो दे आर डूइंग एमडी. किसी को पता है क्लिनिक करना है, दे आर डूइंग क्लिनिक. सो सिमिलरली आपको ही डिसाइड करना है. हम सिर्फ आपको बता सकते हैं कि यार ये चीजें हैं, बट अल्टीमेटली आपकी लाइफ है, आपका करियर है, एंड आपको चूज करना है. आई एम नॉट सेइंग कि अगर ठीक है मैंने अगर आज ये करा, हो सकता है 3 साल बाद मेरा मन नहीं कर रहा है करने का, तो मेरे को देखिए अपॉर्चुनिटी ऑनेस्टली बताऊं इंडिया में नहीं दिखती, बट मुझे यहाँ दिखती है. क्योंकि यहाँ I have a friend, I have a colleague, because she already did a program with me in my college. Now she's working with me in my organization. So that is my colleague. She is from an engineering background, but she did this course, autism and behavior science. Now she's working as a behavior therapist. So engineering and behavior science entirely different, guys. कुछ relation ही नहीं है यार. बट यहाँ पर उसने अपना पैशन दिखाया कि ठीक है यार, मुझे बच्चों के साथ काम करना है और मुझे इसमें अपना पैशन दिखाना है, मुझे सोसाइटी को सर्व करना है. एंड मैं ऑनेस्टली बताऊंगी यहाँ पर लोग एक्चुअली आपकी सुनते हैं, प्लस ट्रस्ट करते हैं. तो मैं आपको ये बोलूँगी, तो खुद से ही पूछो, और हम लोग तो हैं ही कुछ भी पूछने के लिए. सो ओवर टू यू श्रेष्ठा. Yeah, that's the thing. Like she said, बहुत सही उसने बोला, आपको पैशनेट होना चाहिए. जैसे आपने कोर्स खत्म किया, you need to be passionate about something. Like I was clear, I have to do psychology next. जैसे हमारे फ्रेंड्स है, they were clear कि उनको MD होम्योपैथी ही करनी है. तो कुछ क्लैरिटी होनी चाहिए. Nobody else can answer you. Obviously career counselors होते हैं. In case you feel lost या आपको बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं है, तो आप बिल्कुल वहां जाइए. They're gonna help you. बट हमारा तो यही सजेशन रहेगा, यू नीड टू सिट डाउन, थिंक अबाउट थिंग्स यू रियली लाइक, और फिर मास्टर्स करो. बिकॉज मास्टर्स और भी बड़ी आप चीज कर रहे हो, और उसमें बहुत टाइम लगाओगे. सो मेक श्योर यू डू समथिंग विच यू लव. देयर इज नो पॉइंट टू जस्ट कलेक्ट द डिग्रीज एंड बी लाइक हमें नहीं अच्छा लग रहा है एट द एंड ऑफ द डे इनको करके. So that's all we will say about this question. यार हम लोगों ने भी बहुतों का सर खाया. आई रिमेम्बर कि हमारे सीनियर से हम पूछते थे, यार ये हो गया, बताओ क्या करें, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, मास्टर्स एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा. आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड. आफ्टर तुम्हारी 4th ईयर और इंटर्नशिप खत्म होने के आसपास आपको ऐसे एंजाइटी हो जाती है, अब क्या.
सो यार देखो, सब हैं, सीनियर्स होते हैं हेल्प करने के लिए, और हम भी सीनियर्स यार, हमारे भी जूनियर्स हैं, हमने भी अपने सीनियर्स का दिमाग खाया है, तो ठीक है अगर आप लोग भी हमसे पूछोगे यार, अगर हम थोड़ी बहुत भी अपने इस वीडियो के थ्रू हेल्प कर पाएँ तो वो समझेंगे कि ठीक है यार, हम काम आए किसी के। Yeah, that's the thing, क्योंकि I realize and I know कि ये बहुत सारे questions कोई tackle नहीं करता कि कैसे abroad आप जाओ after doing homeopathy. I remember we struggled, like मैंने सब कुछ खुद से किया था because मेरा जो वर्क था इससे पहले थोड़ा स्टार्ट हो गया था, मेरा कोर्स भी इससे पहले स्टार्ट होना था, सो आई वॉज ऑन माई ओन व्हेन आई डिड दीज थिंग्स. इसको थोड़ा मैं हेल्प करने के लिए थी, बट लाइक देयर आर सो मेनी पीपल जिन्हें बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं होता एंड दे हैव नो हेल्प. So with these videos I hope they get help. Okay guys, this video was being super long, so I have decided to divide it into 2 parts. The next part would be uploaded this Sunday as an extra bonus video. And guys, you know the drill. If you like this video, please do not forget to give it a thumbs up. Subscribe to my channel if you haven't already, and also hit the little bell icon next to it so that you can be updated with all my latest videos. So meet you next Sunday. Until then, take care. Bye bye.